सो हे गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। आज मेरे साथ हैं आविष्कार जो पुणे से हैं और जो आरवीसी में फर्स्ट ईयर में पढ़ते हैं और जिनकी रैंक अंडर 700 आई थी। तो हम उनसे सीधा पूछते हैं कैसे उन्होंने अपनी प्रिपरेशन करी। हाय आविष्कार, कैसे हो? Hello everyone, myself Avishkar. I'm from Pune, Maharashtra. So I had prepared for Comet K as well as JEE. So for the preparation, like 2 years, like usually how we study, मैंने भी वैसी पढ़ाई की थी. And like I was not expecting that good rank in Comet K actually. But since the paper was hard of the shift tree, my shift was evening shift. So my rank came actually quite good. And so I would say I would suggest Comet K to everyone actually, because you never know, like you might get the best college from Comet K itself. Like in case of me, ओके, व्हाट रैंक यू गॉट इन कॉमेट के? my rank was 779. 779, ओके। Yeah. एंड इन आरवीसी व्हाट ब्रांच यू हैव? I'm in cybersecurity, computer science. Cyber security, computer Yeah. science. Okay. So, what are the main key points that students should remember before preparing for Comet K? Comet K की तैयारी करने से पहले उनको क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए कि नेक्स्ट 2 मंथ्स के अंदर या नेक्स्ट 1 मंथ के अंदर लास्ट क्या कैसे पढ़ना है पूरा? So देखो, अगर आप अपने लाइक बेसिक से चालू कर रहे हो शुरू से, तो आपको इतना ध्यान रखना है कि 12th का पढ़ाई फर्स्ट करना है, बिकॉज मेजोरिटी ऑफ द क्वेश्चंस आर फ्रॉम द 12th पार्ट इटसेल्फ. फॉर एग्जांपल मैग्नेटिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, then the units and dimensions in physics especially, like 3 questions came from there in my paper. Like such easy chapters Okay. also they cover, where, as compared to JEE it's quite different in Comet K. And here you have to be quite fast in question picking, because we have to complete 180 questions in 180 minutes itself, so almost 1 minute for each question. And to start the preparation, I would suggest do 12th part first. In chemistry you have to do organic chemistry for sure, and chemical kinetics you can do for physical chemistry part. And inorganic, it's up to you, like how much you can by heart in the last remaining days. And it's similar from maths also, like we have to complete 12th maths including vectors and probability first of all. ओके ओके, गॉट Yeah. इट। तो जैसे आपने यहाँ पे बाइफर्केशन दिया पूरा फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स का थोड़ा बहुत, सो व्हाट आर द अदर पॉइंट्स दैट स्टूडेंट शुड रिमेंबर बिफोर प्रिपेयरिंग फॉर कॉमेट के? कि मतलब ठीक है, पहले मुझे 12th का करना है, फिर देन गोज विद द 11th। व्हाट आर द मेजर मेजर चैप्टर्स फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में? Physics में it's like in my paper it was modern chemistry, like almost 3 to 4 questions came from modern chemistry, like photoelectric effect and those last, the formulas which we usually tend to skip from there, formulas like directly formula based questions. And then magnetism, electricity and units and dimensions, this would be like major, you have to compulsorily do these chapters. Then for maths it would be vectors, probability, limits, differentiation, integration, and the coordinate geometry. If you can do it, it's better, but up to you. And for chemistry I would suggest organic is must, because like almost 20 to 25 questions are organic only. If you like Oh. remove, So in chemistry, 20 to 25 questions are straightforward from organic. yeah, 12. 20 questions surely, 15 to Okay, 20. okay, Yeah. okay. Any other chapter in chemistry, 12th? In if I'll say physical chemistry, then you have to do the formulas. Like if you do formulas, there are various directly formula based questions as well. So if you do that, it will be quite better. And in that also chemical kinetics, the graph based questions, like 3 questions came from that chapter in my paper. And in inorganic, I would suggest the VBT wala chapter, like valence bond theory, chemical bonding and that all. गॉट इट गॉट इट। यार सो नाइस, आपने बहुत अच्छे चैप्टर्स बता के क्वेश्चंस भी आपने थोड़े बहुत बता दिए कि कैसे कैसे आते हैं। एंड बिसाइड, अब हमने तैयारी कर ली, ठीक है, हमने 11th का भी देख लिया, थोड़ा 12th का भी देख लिया, या भी हमने थोड़ा मेजरली 12th का देखा था। बट कैन यू शो सम लाइट ऑन द 11th चैप्टर्स, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स? थोड़ा सा 11th चैप्टर हाईलाइट कर लो जिसके क्वेश्चन तुमने बहुत फ्रीक्वेंटली देखे हो। अगर 11th की बात की जाए तो फ्रॉम मैथ्स इट विल बी quadratic, like the basic questions of quadratic, then the modulus question, log questions. These are like very easy questions. They will come in paper for sure, 1 or 2 questions. Then that straight lines in maths, that is also for sure. That like straight lines, 2 to 3 questions will be there, and that too formula based, not at all that hard. You can do in 1 minute itself. For physics, it would be like in my case, gravitation was done in 11th itself, so it is for me 11th chapter.
Then you can do the rotational motion. I will say skip it because it's very lengthy. You will not be able to complete it in exam at all. And then you can do the other basic question, NLM, Newton's laws of motion, that all chapters, like basic chapters, you can do it. And the greatest suggestion according to me would be, if you are starting from the like 0% preparation, then do reverse analogy. Like first solve Okay. various papers and make a separate book. In that, write down the different types of questions which you face in a particular chapter. So what will happen by the end of, let's say you give 20 tests, you will have a collection of questions in your hand. Then you can just like go through all the different types of questions which have come in the exam, and then with respect to that you can like remember the formulas, the theory which is related to that questions. In that way it will just skip the irrelevant part of the theory which you might read while preparing. ओके बट आई कैन से कि मैं ये जो तुमने बताया ना कि पूरा कि 10-20 साल के पेपर ले लो और हर एक पेपर में देखो कौन से चैप्टर से क्या क्या क्वेश्चन आए, ये हैसल बच्चे नहीं कर, मतलब उनको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमने ऑलरेडी अपने जो गोल्ड बैच है ना वहाँ पे टेस्ट सीरीज में वहाँ पे चैप्टर वाइज टेस्ट डाल रखे हैं ऑलरेडी. उस चैप्टर वाइज टेस्ट में इफ अ पर्सन कैन गो इन एनी चैप्टर लाइक कंटिन्यूटी हो गया या इलेक्ट्रोस्टैट्स हो गया, तो उसको वहाँ पे ऑलरेडी 30 से 40 क्वेश्चन बाइफरकेट करते हुए मिल जाएंगे कि ये कॉमेट के में आए थे, तो उसको करने की वो जरूरत ही नहीं है कि वो जाके पेपर ढूंढे छाने. तो हमने वो पूरा प्रॉपर टेस्ट सीरीज में बना दिया था, क्योंकि मुझे पता था ये चीज कहीं ना कहीं बच्चों को प्रॉब्लम आ रही थी, तो हमने ये चीज कर दी थी कि जहां बच्चा क्या करता है कि पहले बेसिक्स पढ़ ले और उसके बाद सीधा टेस्ट पेपर लगाना शुरू कर दे, जो चैप्टर वाइज हमने वहां पे डाले हैं जिनसे उनको आसानी हो जाती है. कि इफ अ स्टूडेंट स्टडी इलेक्ट्रोस्टैट्स, बेसिक पढ़ लिया, देन ही केम टू डायरेक्टली टू क्वेश्चंस दैट कम्स इन कॉमेट के, तो वो 10-10 क्वेश्चन का टेस्ट लगाता है, तो प्रॉपर उसकी तैयारी वहां से हो जाती है. तो गोल्ड बैच आप लोग चेकआउट कर सकते हो, पिन कमेंट में है. सेकंड क्वेश्चन कि व्हाट आर द मेजर की पॉइंट्स दैट आर स्टूडेंट शुड रिमेंबर. चलो मैंने कोर्स तो पढ़ लिया यार, कॉन्सेप्ट पढ़ लिए, फिर आगे क्या तैयारी करनी है वो थोड़ा की पॉइंट्स में अगर आप बता सको. तो अगर आपकी एक बार पढ़ाई पूरी हो गई है, लाइक यू हैव स्टडीड वॉट एवर योर कैपेसिटी इज, लेट्स से 80% of the whole syllabus you have completed before exam. Now, instead of learning the 20% remaining part, you should go and do the revision of the already completed parts, because that will boost your confidence in the exam. Confidence is very important in exam, because in my case, the paper was very hard. Like I had solved many papers of ComEd के previously, but in exam while I was sitting, I was like, इतना hard paper आ गया, अब कैसे होगा? But like I was like, solve करेंगे, जो होगा देखा जाएगा. Let's at least solve the questions. Maximum questions जितने हो पाएंगे उतने करेंगे. एंड टाइम लिमिट याद रखना है हमें, क्योंकि कॉमेड के में टाइम लिमिट बहुत बड़ा गेम करता है. इफ यू आर नॉट एबल टू कंप्लीट द पेपर, लाइक तुम्हारा पोटेंशियल होगा 140-130 का और तुम्हें आ जाएंगे 100 मार्क्स, क्योंकि तुमने टाइम अच्छे से मैनेज नहीं किया. और फिर ऐसा भी हो सकता है कि टाइम मैनेज ना होने की वजह से तुम तुक्के भी मतलब बिना सोच के मारने लग जाओ. बिकॉज अगर तुम्हें तुक्के मारना है, एटलीस्ट 5 मिनट्स रखो एंडिंग में, लाइक वेयर यू कैन थिंक फॉर 10 seconds एंड मार्क द लाइक मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शंस आई वुड से. ओके, सो पेपर के दौरान तेरा कैसा टाइम मैनेजमेंट था, तेरी कैसी स्ट्रैटेजी थी वहाँ पे? मेरी स्ट्रैटेजी थी कि आई विल स्टार्ट विद द केमिस्ट्री बिकॉज इट इज मोस्ट फास्ट फॉर मी, देन आई विल गो टू फिजिक्स एंड लास्ट में मैथ्स, एज मैथ्स इज लेंदी. बट अगेन लाइक मैथ्स में लेंदी क्वेश्चंस होते हैं, बट सम आर वेरी डायरेक्ट, लाइक यू कैन जस्ट पुट द वैल्यूज एंड गेट द आंसर्स. सो फर्स्ट यू हैव टू टैकल दोज टाइप ऑफ क्वेश्चंस, कीप द वेरी लेंदी एंड लाइक अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चंस एट द एंड. And in chemistry as well, you have to do this only. Like first complete all the inorganic and organic parts, which you can like solve the question. हाँ आ गया, next question वैसा. Because बहुत क्वेश्चन ऐसे होते हैं. सॉल्व करने का नहीं होता ना वहाँ पे, फॉर्मूला लगा के सॉल्व करने का नहीं होता फिजिकल केमिस्ट्री की तरह. वहाँ पे आपने देखा और आपको आता है तो आप टिक कर दोगे वहाँ पे. वही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में लाइक अगर रिएक्शन दी होती है, अगर हमें आता है तो ही आएगा, नहीं तो नहीं आएगा. तो वैसे केस में वो तो आपने कितना टाइम एलोकेट करा था एक एक सेक्शन को? केमिस्ट्री में कितना गया था, फिजिक्स में कितना गया था, मैथ्स में कितना गया था, कुछ आइडिया? मैंने किया था कि मतलब इक्वल देंगे, लेकिन एग्जाम में तो ऐसा होता नहीं है. क्योंकि फिर केमिस्ट्री का ऐसा हुआ कि शुरू में मतलब 40 मिनट्स में लाइक ऑलमोस्ट 60 में से 40 क्वेश्चंस ही हो गए थे. फिर 20 मिनट्स में मुझे ऐसा फास्ट करने का ये पड़ा, ऐसा प्रेशर बिल्डअप होने लग गया. एंड देन फिजिक्स में मुझे वो प्रेशर कम करना पड़ा, क्योंकि मैथ्स के लिए तो कंपलसरी 60 मिनट्स से ज़्यादा ही लगता है टाइम. तो मैंने प्रिपरेशन करते समय ऐसा 140 मिनट्स और 100 minutes for the like 90 minutes plus 10 minutes extra for physics and chemistry was my target, ideal target, but I was not able to achieve it obviously.
बट एट अराउंड दैट आई वॉज एबल टू लाइक 90 मिनट्स होते हैं तो 110 मिनट्स में आई कंप्लीटेड फिजिक्स केमिस्ट्री एंड रिमेनिंग 60 प्लस सम 70 मिनट्स आई गिव फॉर मैथ्स. गॉट इट. तो वहाँ पे आपने इस तरीके से करा था टाइम मैनेजमेंट? हाँ, मतलब प्रिपरेशन करते समय हम अच्छे से किया था, लेकिन एग्जाम में तो अलग हार्ड पेपर आ गया तो फिर प्रेशर हो गया, इसलिए फिर वो मैनेज नहीं हो पाता. लेकिन फिर भी हमें करना पड़ेगा कुछ तो करके, नहीं तो फिर पेपर बहुत बुरा जाएगा. तो इसलिए भाई मॉक टेस्ट इंपॉर्टेंट होता है. हाँ, भाई mock मॉक test. टेस्ट लगाना जरूरी है. अगर मॉक टेस्ट दिए काफी होंगे तो important फिर है. बहुत इंपॉर्टेंट अच्छा होता है पेपर. क्योंकि हमने अपने गोल्ड बैच में भी मतलब 20-25 से ज़्यादा मॉक टेस्ट दे रखे हैं. और मार्केट में बच्चा जब मॉक टेस्ट ढूंढता है तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिलते हैं, 5 मिलते हैं. बट हमने यहाँ पे 25 से ज़्यादा मॉक टेस्ट डाल रखे, अलग से फुल लेंथ, फिर प्लस प्रीवियस ईयर पेपर भी डाल रखे ताकि बच्चा उसी में तैयारी कर सके विद दैट पैटर्न. मतलब 2024 का पेपर वहीं पे डाला हुआ जो आपने दिया था, वही सेम पैटर्न पे डाल दिया था. 23 का, 22 का, सब गोल्ड बैच में वहाँ पे हमने डाल रखा. और एक चीज़ हमने वहाँ पे ऐड की थी, फॉर्मूला शीट हैंड रिटन. क्योंकि बच्चों ने बोला था कि भैया हमें फॉर्मूला शीट बनानी पड़ रही है, आप भी फॉर्मूला शीट बना रहे थे. तो उस टाइम पे हमने कहा ठीक है हम फॉर्मूला शीट भी ऐड कर देते हैं, जिसको हमें 3-4 महीने लगे. बट इट वॉज अ वेरी ब्यूटीफुल हैंड रिटन कलरफुल फॉर्मूला शीट दैट हेल्प्स अ लॉट ऑफ स्टूडेंट एट द टाइम ऑफ प्रिपरेशन. जो फॉर्मूला शीट वहाँ पे होती है, फॉर्मूला शीट कितनी इंपॉर्टेंट होती है, थोड़ा आप उसकी वैल्यू बताइए, क्योंकि बच्चों समझ नहीं आती. सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर कुछ होगा प्रिपरेशन में तो फॉर्मूला शीट होती है. बिकॉज जब हम थियोरी पढ़ते हैं उससे थियोरी वैसे की वैसे नहीं पूछते, हमेशा फॉर्मूला अप्लाई करना आना चाहिए हमें. तो उसके लिए पहले हमें फॉर्मूलाज याद होने चाहिए. तो अगर याद करना है तो सबसे इजी तरीका होगा एक जगह पे अगर सारे फॉर्मूलाज होंगे. तो अगर अलग अलग चैप्टर में ढूंढते बैठेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा. सो फॉर्मूला शीट इज वेरी इंपॉर्टेंट, लाइक इट improves योर स्पीड एज वेल एज एक्यूरेसी. Okay. Any other tips you want to give to the juniors who are giving कॉमेड के this year? क्या क्या चीज़ें लास्ट में जो उनको ध्यान रखनी चाहिए पॉइंट्स? सबसे बिगेस्ट पॉइंट वुड बी, अगर पेपर हार आ गया टेंशन मत लेना, पैनिक मत हो जाना. आपने जितने भी प्रैक्टिस किए होंगे मॉक टेस्ट, उसके उस वक्त आपने कैसे किया, मैनेज किया था, उसी तरह से आपको मैनेज करने की कोशिश करनी है. यू हैव टू ट्राई टू बी एट दैट लेवल इटसेल्फ. यू शुड नॉट गेट पैनिक एंड लाइक स्टार्ट मार्किंग रॉन्ग क्वेश्चंस or take more time for the similar question. As well, before the exam, like you have to lunch हमारा मैनेजेबल होना चाहिए. like अच्छा लंच खाना, बाद में वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स नहीं होना चाहिए. बिकॉज वन ऑफ माई फ्रेंड को लाइक इन जेई उसको ऐसा हुआ था, तो लाइक हिज पेपर वेंट वेरी बैड ड्यू टू दैट थिंग. एंड ऑल्सो टेम्परेचर, लाइक मई में एग्जाम मेरा हुआ था, टेम्परेचर सेंटर में बहुत गर्म था हमारे. लेकिन हम लाइक वी हैड कस्टम टू इट ड्यू टू जेई प्रिपरेशन एज वेल. लाइक जेई के वक्त भी ऐसा ही सेम सेंटर था इसलिए. लेकिन ये याद रखना चाहिए सबको. एंड देन टाइम मैनेजमेंट, तो लाइक जितना अच्छा हो सके उतना प्रैक्टिस करो. फिजिक्स केमिस्ट्री को फास्ट एज पॉसिबल ट्राई टू सॉल्व फिजिक्स केमिस्ट्री, एंड मैथ्स को जितना ज़्यादा टाइम हो सके उतना दे. मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री को अपने मॉक टेस्ट आप जब लगाओ तो उसमें कम से कम टाइम दो, और मैथ्स में ज़्यादा टाइम निकालने का ट्राई करो, क्योंकि वो थोड़ा लेंदी भी होता है और आपको क्वेश्चंस भी छाटने हैं. एंड इन शॉर्ट हो सके तो इजी क्वेश्चन छाटो तो बेटर है, क्योंकि टफ क्वेश्चंस होते हैं आई गेस. हाँ, टफ क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन वो मतलब पता चल जाता है कि ये हमसे सॉल्व भी नहीं होगा या फिर बहुत लेंदी है. लाइक फिजिक्स में तो रोटेशन का तुम क्वेश्चन ले लो, उसमें डायग्राम निकालते ही तुम्हारे 1 मिनट खत्म हो जाएगा. इसलिए पहले तो इजी क्वेश्चंस वी हैव टू बी वेरी पर्टिकुलर टू लाइक डिफरेंशिएट द इजी क्वेश्चंस फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस एंड कंप्लीट देम फर्स्ट, बिकॉज देयर आर इजियर क्वेश्चंस वेटिंग फॉरवर्ड. ये थोड़ा अंदर की बात बताई. एनी अदर पॉइंट यू वांट टू हाईलाइट बिफोर एंडिंग दिस इंटरव्यू? कोई ऐसी बात बच्चों को आप कन्वे करना चाहो, एनी मैसेज यू वांट टू गिव टू द स्टूडेंट्स who all are giving कॉमेड के? कोई अंदर की बात जो उनको ध्यान रखनी चाहिए while preparing for कॉमेड के? देखो, आई वुड से दैट यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट इन योरसेल्फ एट द लास्ट मोमेंट. You should not panic and should not overthink that I've studied only 2 months, what will happen? See, nothing will happen. You have to be confident on your study of 2 months, because in 2 months if you do the formula sheet and 20 to 25 mock tests, it's perfectly enough for COMEDK, because you will get accustomed to this 3 hours cycle. So every day try to solve at least one paper of COMEDK so that you will get like आदत हो जाएगी. This is my normal routine, and try to solve in the limited test hours. For example, 2 to 5, then 5 to 8, and
मॉर्निंग का सेशन जो डेट्स तुम्हारी होंगी इस साल की, अकॉर्डिंग टू दैट ट्राई टू प्रैक्टिस इन दैट सेशन इटसेल्फ and without any external disturbance, so that you get like maximum output as a real CBT test as it was. थैंक यू आकाश यार, बहुत इंसाइट्स दिए तूने यहाँ पे, मतलब जो मुझे और किसी इंटरव्यू में नहीं मिले थे। थैंक यू सो मच फॉर दीज इंसाइट्स। एंड प्लीज़ आप लोग चेकआउट करना कॉमेट के टेस्ट सीरीज़, मेरा मेंटर के ऐप पे पिन कर रखा कमेंट में, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू सो मच आविष्कार यार इंटरव्यू में आने के लिए, थैंक यू सो मच टाइम देने के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सब्सक्राइब कर लो, बाय। थैंक यू आविष्कार। ओ रिकॉर्ड हो गया ना वैसे।